हिमालय बचेगा, हिमालय के लोग बचेंगे, और उस हिमालय से निकलने वाले नदियों से जो करोड़ों किसान हैं उनकी खेती भी बचेगी, तब ये देश बचेगा। Himalaya, linking our Himalaya to the global sort of threat to humanity needs a linkage of knowledge. And I think this is where the whole issue of knowledge needs to be worked on. तो हमारे लिए आज सबसे पहले अगर आवश्यकता है, जो पहली आवश्यकता है वो ये है, और वो हम बहुत लंबे समय से 90 से इसकी मांग करते आ रहे हैं कि हिमालय के लिए एक समग्र, सतत, समावेशी विकास की नीति की आवश्यकता है। I think if we, as people who are concerned about the Himalayas, the only way forward is if politically we are in a position to, have that particular commitment. Now, this is the basin map of the Himalayan rivers, which is much larger than the mountain area from which these rivers. There are 10 rivers. We have to understand the Himalaya not through Sariju or Kosi or a single river. We have to understand the Himalaya through all the 10 rivers. The 10 rivers are very, very important rivers. The Yellow River here, for China, Yellow River. Then you have Yangtze. Yangtze is one of the longest, fourth longest in the world, and carries a lot of water. Then we have Mekong, Irrawaddy, and Salween, 3 rivers. Then we have Brahmaputra. Brahmaputra is probably the largest producer of flows, about 606 BCM per year. West of Brahmaputra basin is the Ganga basin. We talk of Ganga all the time, but Ganga is only one of the 10 river basins of Himalaya. Each river basin has its peculiarities, management problems, and similarities. This is west of Ganga is the Indus, and then north of Ganga is the Amu Darya and Tarim. Now, I will not go further into the maps, but I will say that all the Himalayan river basins are affected by global climate change in a very, very blanket manner. And we still do not know. If you see the last IPCC report, which came out a few weeks back, we still have a knowledge gap on what is going to be the Himalayan river flows by the end of this century. This is because we do not have good data. This is because Himalayan climate is not well understood, so that the regional climate models, when they apply, they're applied on the mountain areas, they do not produce a very dependable data. Himalaya, linking our Himalaya to the global sort of threat to humanity needs a linkage of knowledge. And I think this is where the whole issue of knowledge needs to be worked on. And that is what I have been also doing in my own little way, most humbly. And I think there is a need for
understanding the Himalaya in a much more serious manner. Then we have given the focus on Himalayan policy, but we have not really linked our own institutions, major Himalayan institutions, with policy. Now, payment for ecosystem services is still in the lips of policymakers, but how to exactly bring that payment of ecosystem services into a governance process is still a big vacuum. So we have to go into research, we have to go into quantification of the pricing, quantification of the valuation of the water that mountains produce, and then come to understand how payments for ecosystem services has to be provided. Now, there are lots and lots of research that needs to be brought to the policymakers. उत्तराखंड की नहीं है, ये हिमालय इस हम सबकी चिंता का सरोकार है। और जब मैं हिमालय की बात करता हूँ तो हिमालय दुनिया में अलग अलग रूप से लोगों की कल्पना में आता है। हिमालय इस देश और दुनिया में बड़ा जियोपॉलिटिकल अखाड़ा भी है, लेकिन मेरी चिंता उस पॉलिटिक्स से दूर दुनिया की 2-3 आबादी जिस हिमालयी क्षेत्र में रहती है और हिमालय में होने वाले घटनाक्रमों से जो प्रभावित होती है उस पर ज़्यादा है। हिमालय एक तरफ 1 अरब से ऊपर की बड़ी आबादी का भारत वर्ष है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भूटान है, नेपाल है, एक तरफ चाइना है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ चाहे वो भारतीय उपमहाद्वीप में आती हों या चाइना की ओर आती हैं, कि बड़ी आबादियों का उद्गम स्थल भी इसी हिमालय पर निर्भर करता है। और जब ये हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, उन्हीं पर दुनिया की बहुत बड़ी सभ्यता का भी क्या कहते हैं उदय उस पर हुआ। आज उस सारे हिमालय के ऊपर संकट है। हम बातें चाहे हिमालय को बरयाने के, पर्यावरण का संकट है, चीज का संकट, दुनिया का संकट है। इस संकट के प्रति हम क्या कहते हैं चिंतित भी है, एक चिंता के साथ साथ हम क्या कहते हैं रोज हिमालय पर घात प्रतिघात भी कर रहे हैं। आज ही जब मैं आपके साथ बहस को आगे बढ़ूं तो भारत सरकार ने फिर उत्तराखंड के अंदर साथ उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं स्वीकृति दे दी है, जो फिर इस हिमालय के लिए फिर घातक होने जा रहा है। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस ने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा था, भारत की जब 2013 की बहुत बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा के संकट ने देश को सचेत किया था। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई थी और उस समय उसने कहा भी था कि आप क्या हिमालय पर बड़े बड़े जो मल्टी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े डैमों के अस्तित्व आ रहे हैं, जो हिमालय के ऊपर दिल दहलाने वाले विस्फोट कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, नदियों को क्या कहते हैं उनके प्राकृतिक सोर्स से हटा करके पहाड़ों के अंदर क्या बहा रहे हैं, क्या ये जो प्राकृतिक नेचुरल चीज को हम मैन मेड कर रहे हैं, क्या इससे हिमालय के अस्तित्व को खतरा होगा नहीं होगा। तो 13 की आपदा हुई और अभी हाल ही इसी वर्ष जो चमोली के ऋषि गंगा के इतने बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग मर गए, सैकड़ों लोगों की आज भी उनका शरीर ही नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली। जो हादसे हुए हैं इसके आधार पर सबक लेते हुए देश में कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, एक्सपर्ट बॉडी ने राय दी कि हिमालय के बारे में, विकास के बारे में पुनर्विचार की जरूरत है।
क्या कारण है कि हमारे हिमालयी क्षेत्र में तमाम राज्य बरसात में आते ही सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, लैंडस्लाइड, बीमार जैसे मनुष्य बीमार है वैसे हिमालय के पहाड़ भी बीमार है। उसके कारण क्या है, उसके संदर्भ में हम दुनिया के क्षेत्रों से सीखते हैं। दुनिया में चाहे आल्प्स हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, उन्होंने भी अपनी टेक्निक के क्षेत्र में अपने विकास को भी आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ अपने वहाँ के पहाड़ों को, हिमालय को भी सुरक्षित रखा। आखिर वो जो नई टेक्निक दुनिया में आ रही है वह भारतवर्ष उसको क्यों नहीं लेता है? हिमालय राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने दम पर इसको कर सके, तो उसके संदर्भ में भारत सरकार को आगे आना। हमारे लिए आज सबसे पहले अगर आवश्यकता है, जो पहली आवश्यकता है वो ये है, और वो हम बहुत लंबे समय से 90 से इसकी मांग करते आ रहे हैं कि हिमालय के लिए एक समग्र, सतत, समावेशी विकास की नीति की आवश्यकता है, जो कि हम नहीं बना पाए हैं, बार बार कह रहे हैं। और अगर वो नीति नहीं बनती है तो मेरे विचार से जो हम ये सब चर्चा 10 साल से, 11 साल से, 9 सितंबर 2010 को जब हम विठल भाई पटेल हाउस में बैठे थे और जब निर्णय लिया गया था, तो हमने आज तक 2021 तक कोई उसमें प्रगति नहीं की है। हम 9 सितंबर को बैठते हैं और उसके बाद हिमालय को भूल जाते हैं। ये जरूर है कि जब हम बहुगुणा जी और हम हिमाचल गए तो वहाँ के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई कि हमको इस पर विचार करना चाहिए। और 2-3 साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उसमें मसूरी में एक बैठक की थी, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो पाया है। तो पहली आवश्यकता इस बात की है, और उसमें 3 चरणों में होना चाहिए। पहला चरण है जो हम हिमालय में रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, उनके साथ विचार विमर्श करके हमने उस समय यही कोशिश की थी जब हम गए थे कि हमारी क्या समस्याएं हैं, साझी समस्याएं क्या हैं, खुशियां क्या हैं, उस पर हमको बातचीत करनी चाहिए। दूसरा चरण होना चाहिए जिनको फायदा हो रहा है हमारे देश के लोगों, जिसमें आप पंजाब से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक आप समझ सकते हैं, उन राज्यों को संजीदगी से हिस्सा लेना चाहिए। और तीसरा जो है, हिमालय हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है कि हमारे जो आपस के मतभेद हैं उनको दूर करने में हिमालय बड़ी भूमिका। मंडल कमीशन की जो पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार मध्य हिमालय के लोगों को ओबीसी की श्रेणी में लाया जाए, उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं, और 2006 का फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से उनके जो पुश्तैनी हक हकूक हैं, अधिकार हैं, वो सारे के सारे वापस किए जाएं। Today we are looking at e-mobility, whether whether we are in a position to introduce very forward-looking policies for e-vehicles in the mountain states, because obviously if we continue to use fossil fuels in the mountain roads and in the high density tourist areas, then this is we are just adding to the pollution and the way in which we will destroy the very mountains that we are seeking to save.
July of 2019, all the chief ministers from all the mountain states actually gathered for a conclave in Mussoorie. And this was on account of the 15th Finance Commission. It was being finalized, and even the Union Finance Minister and the chair of the Finance Commission, Mr. N.K. Singh, had also graced that occasion. And so therefore, if you see whether the work of the Integrated Mountain Initiative in bringing all this to happen bore fruit, and you see that from on the devolution, 10% allocated to forests, and this is also on account, and more money allocated for natural disasters, and especially in the mountain areas. And this is something which we think is a huge impact. I would just like to, end by saying that this is really a call to action. It has to be also planned by all political parties. I'm one. I represent the Sikkim Democratic Front Party, and in Sikkim, in our manifesto, like has been, I think, argued. I think was it Vijay Pratap ji who had argued that now it is time to make even the Himalaya and the way in which the Himalaya can be saved or sustained, it has to be made political. And so therefore each and every political party must have in its manifesto something that they will do.